Hi guys, how are you? I hope we all are fine. So till now I had covered all those concept of matrix. If you have not watched, please go and watch this previous video. So in this way you are going to get each and every concept related to matrix. If you once you go through this one, you will get the idea about brief idea about the matrix. What is the properties? I had covered all those things within a short period of time. So if you have not watched, please go and watch a previous video. So in order to get all those concepts, once you will go through now, then you are going to get confident about these chapters. And also this is the I told you in previous classes and also beginning. Matrix and determinant is totally a scoring subject, scoring chapters. If once you pay 50% focus na, then you are going to get a 10 to 12 marks easily from these chapters. That's why I am requesting you just go and see. I had covered each and every concept within short period of time. So also I will right now I will cover NCERT numerical this times. If any concept would come while I would solve question, then also I will try to focus on those concepts. So you should not be bothered about anything. Just you have to leave me on me, and just only you have to do one thing. Just focus and practice as much as you can. Once you practice, your confidence will be boosted up day by day. This is the funda of learning mathematics. I told you, this is the only one thing will work in your mathematics subject. Only you have to practice as much as you can. So in this way you are going to get each and every concept. Also you don't need to memorize any formula. Once you solve 2 to 3 problems on same formula or concept, you are going to grab it easily. Nothing more than that. That's why I'm always trying to tell you. You should not memorize anything. Just you have to practice. 1 to 2 3 problem you will practice on same concept. Automatically this will fit in your mind. So that's why I'm telling you always. Just try to practice. So okay guys. So today I would cover matrix numericals. So this is the NCERT books. देखिए आप लोग देख सकते हो, आप लोग NCERT का बुक्स जो मैं आप लोगों को जो चैप्टर में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डील करूंगा. और कुछ भी आप लोगों को इंक्वायरी कुछ भी लगे, कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में कमेंट करना. आई विल ट्राई टू रिप्लाई एट द सेम टाइम्स. इफ आई वुड गेट दिस इज द रेलिवेंट concept, I would try to make video on that concept. So what being asked by your side. Okay guys. तो चलिए मैं आप लोगों के लिए NCERT का सबसे पहले मैं NCERT का मैं आपका एक्सरसाइज 3.1 है. जैसे मैंने डिटरमिनेंट में एक करके मैंने सोल्व किया था, वैसे आप लोगों के साथ सोल्व करूँगा. जो भी कंसेप्ट लगे मुझे उसी समय आप लोगों को कंसेप्ट भी बता दूंगा जो मैं बताया भी हूँ. तो इसलिए आप लोग ये रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप कंसेप्ट भी सीख जाओगे. इसलिए आप लोग फोकस करके देखना. आप प्लीज़ आप लोग दोस्त लोगों को शेयर करना, जो लोग भी बेनिफिशियल हो, पता चले कि इस तरह से हम यहाँ पे क्लासेस चल रही है. ठीक है, चलिए फिर. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन. ठीक है, एक क्वेश्चन करके लूँगा मैं. तो ये पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को लगे कुछ देखने में दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग बुक NCERT का ये एक्सरसाइज 3.1 है, जिसे मैं यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ. तो देखना आप लोग. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, सिंपल है. इसमें मैं जो इजी रहेगी मैं उसको डील नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं सोल्यूशन आप लोगों के लिए बताऊँगा. ठीक है, जैसे देखो ये कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है. मैं डिटरमिनेंट नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, कोई मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है. ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको. ये एलिमेंट लिखा हुआ है, पहला जो है देख लेना आप लोग. मैं पूरा नहीं लिखूँगा. 2 5 ये सब चल नहीं रही. ठीक है, 2 5 90 -7 35 -2 5/2 12. ओके, √3 1 -5 70. चलिए मैं लिख ही दिया. ठीक है, कोई गई, मैं लिख ही दिया आप लोगों के सामने. ऑलरेडी ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऑलरेडी डिटरमिनेंट में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन के लिए पर्पज से मैं सोल्व कर दूँ. तो ये कौन सी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? सिंपल है, 3:3 मैट्रिक्स की दी हुई है. तो ये पूछ रहे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. पहला जो क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी, पहला आंसर क्या होगी बताओ आप लोग. सिंपल है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी? 3:3. ठीक है,
इसमें क्या है, नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आती है, कितने इसमें एलिमेंट दिया हुआ है, सिंपल दिख रहा है 3:3 है, तो 3:3 9 होगी, सिंपल है, कुछ नहीं। ये पहला क्वेश्चन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। राइट द एलिमेंट ऑफ A13 A21, सिंपल है, आप लोग देख लेना, मैं लिख देता हूँ A11 A12 A13 A13 सॉरी गाइस 1 2 3 4 ओके 1 2 3 ओके सॉरी 3:4 है, सॉरी 3:4 है, ओके मैं ये 1 2 3 ये कॉलम 4 है, एक 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी हाँ सॉरी 4 है, ये रो है 1 2 3 रो है, सॉरी एलिमेंट आपकी हो जाएगी 3 4 जा क्या हो जाएगी 12, ठीक है, सॉरी बाई मिस्टेक हो गई है। तो फिर चलिए A13 A14 A21 A22 A23 A23 A24 A31 A32 A33 A34, आप लोग देख लो कौन सी एलिमेंट पूछ रही है, सिंपल है A13 A21 A33 A24 A34, सब हर सारा आंसर इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग जो दिया हुआ है आप लोग निकालो, सिंपल, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, देख लो ना आप लोग, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, स्कोरिंग एज वेल एज ईजी भी है, इसलिए मैं बार फोकस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है जब आप प्रैक्टिस करो तब, ठीक है। तो फिर चले, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो है, ये मैट्रिक्स है जो 24 एलिमेंट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव द व्हाट इज द है 13, ओके, ये 24 एलिमेंट दिया हुआ है, इसका आपको ऑर्डर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, मैं ये सारा क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 दिया हुआ है, इसका 24 एलिमेंट दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, कैसे निकाला एलिमेंट, जो ऑर्डर है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही एलिमेंट हो जाएगी आपकी। तो मैं क्या होगा 24 दिया हुआ है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ऑर्डर किस में बांट सकते हैं, 1:24 लिख सकते हैं, फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं 2:1 सॉरी 24:1, ये से चल नहीं रही है, थोड़ा इसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, इससे लिखा हूँ 1:24 24 × 1, इसका फिर 2 × 12 12 × 2 कितना हुआ, फिर आपको क्या लिख सकते हैं 6 4 जा 4 6 जा क्या हो रही ना, फिर और लिख सकते 8 3 जा 24, ये भी लिख सकता हूँ मैं 8 3 जा 3 8 जा, ठीक है। आप लोग बताओ कितना हुआ, और कोई बचा है क्या, बताओ आप लोग, ये 6 4 जाओगे 8 3 जा सब, तो हम लोग कितना हो गया इसमें, अभी कितना हो गया बताओ इसमें कितना हो गई, तो फिर ये आपकी 8 हो जाएगी, एक ये 2 2 2 2 2 2 2 2 4 8 सॉरी 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगी 2 2 4 8 हो जाएगी, 4 4 8, ये आपकी 8 ऑर्डर इसमें हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गई, ये इसमें हम लोग कितना कर सकते हैं 8 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना कर सकते हैं 8 मैट्रिक्स है 8 ऑर्डर का, इससे हम फॉर्म कर सकते हैं, अगर 24 एलिमेंट दिया हुआ है हमको, उसको ऑर्डर फॉर्म करना है, इस तरीके से हम ऑर्डर फॉर्म कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे, जो एलिमेंट है उसी से हम ऑर्डर भी बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पे कैसे 3 2 4 तो इनको एलिमेंट आ गई, वही चीज़ है, ठीक है, कुछ नहीं है। फिर इसमें एक और दिया हुआ है आपको 13 का क्या होगा, एक ही है, ये प्राइम नंबर है, इसका 13 दिया हुआ है पहले से हमको, इसका क्या 1:13 होगा या 13:1 होगा, तो क्या होगा 1 2 ही होगा, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो दो ही मैट्रिक्स ऑर्डर का फॉर्म होगा इसमें, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग कैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये सिंपल है, कुछ नहीं करना, 3 2 1 तो 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तो ये इजी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ, जो आप लोगों को थोड़ी बहुत रिकॉल हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिकॉल ऑल दोज कंसेप्ट, ओके, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दोज न्यूमेरिकल, अदरवाइज देयर इज नो नेसेसिटी टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, ओके गाइस, let's begin with other question, okay, just give me some time for reading this one, okay। तो question number 3, if the matrix है 18 एलिमेंट, the what is the possible, वही सेम है, अगर 18 एलिमेंट है तो क्या होगा 3 6 जा 6 3 जा 9 2 जा 9 3 जा, इस तरह की है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं एक ही पार्ट लूँगा, जो आपकी एक ही पार्ट लूँगा, जो पहला है वो लूँगा, सेम है उसी पे सेम है, आपको मैं एक बन जाएगी, जिससे आपको खुद ही पता कर लोगे, ठीक है। तो मैं ये पहला जो मैं पहला दिया हुआ है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जो पहला लूँगा आप लोग 2 कर लेना, वही सेम ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, AIJ
ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, होल एलिमेंट आर गिवन बाय इतना है, ठीक है। तो इसमें क्या 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें हमको आपको एलिमेंट फॉर्म करना है, इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हमको 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ये क्वेश्चन में बता रहा है, कंस्ट्रक्ट 2:2 मैट्रिक्स होल एलिमेंट आर गिवन बाय, इसका एलिमेंट दिया हुआ है, उसको हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो सिंपल में क्या बताया था, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, सिंपल में बताया था ना आप लोगों को, ये मैट्रिक्स में बताया था, सॉरी डिटरमिनेंट में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, देखो आई जे, तो ये क्या रो, ये क्या कॉलम, ठीक है। तो इसको फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, अगर 2:2 का मैट्रिक्स हमको पहले से दिया हुआ है, 2:2 का फॉर्म में दिया हुआ है, तो कैसे इसको एलिमेंट को भरेंगे हम, बताओ आप लोग। सिंपल है, ऐसे भरेंगे ना, कैसे भरेंगे, A111 A12 A1 A21 A22, यही लिखते हैं ना एलिमेंट, इसी को ऐसे लिखते हैं ना, फॉर्म करते हैं। तो सिंपल है, अगर हम पहला अगर इसका एलिमेंट निकाले हम A11 का, तो क्या होगा, A11 का दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, आई की जगह आई, ये हो गया आपके जे, देखो समझ पा रहे हो ना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो आप लोग, ये A11 का जो है, ये पहला टर्म हो गया आई, ये पहला टर्म जे, मैं ऑलरेडी आप लोगों ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दोस थिंग्स, स्पेशली मैं आप लोगों को बता चुका हूँ हर चीज़, ठीक है। तो A1 आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जे का वैल्यू भी 1, ठीक है। तो पुट करो इसमें, A11 पुट करो, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा A11 का 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 × 4/2 2, इसका A11 का क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। A11 का 2 आ गया, इसमें A11 का 2 आ गया। फिर चलिए A12 कर लेता हूँ, A12 क्या होगा बताओ आप लोग, A12 बताओ क्या होगा, A12 कुछ नहीं होगा, इसमें देखो A12 का फिर क्या, देखो A12 का क्या दिया हुआ है बताओ आप लोग, A12 का क्या दिया हुआ है, फिर इसमें आई हो जाएगी, ये फिर जे हो जाएगी, ठीक है ना। ये पहला वाली जो नंबर होगी वो आई होगी, दूसरा वाली होगी वो जे होगी, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम। सिंपल है, आई का वैल्यू मिल गया हमको 1, जे का वैल्यू मिला 2, अब हमको पुट करना है A12 का, तो क्या होगा, आई हमको कितना निकला है, आई 1 है, आई क्या है 1 है, जे कितना है 2 आ गया, उसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर डिवाइड 2, तो क्या होगा 1 2 1 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 9 9/2 मीन्स 9/2, हमको A12 का वैल्यू 9/2 आ गया, ठीक है। समझ लो ना आप लोग, कितना ईजी है, कुछ नहीं है। फिर चलिए मैं ये A12 का मैं यहाँ पे निकाल लिया, फिर चलिए हम A21 का निकाल लेते हैं, ठीक है। A21 का निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी आई, फिर यहाँ पे जे, जो फिर दिया हुआ क्या है हमें, फिर आएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इससे क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2, 3 × 9 9/2 मीन्स इसका भी 9/2 आ जाएगा, ठीक है। वह है, इसमें कुछ नहीं करना आपके को। फिर इसका 9/2 आ गई A21 का, ठीक है। फिर आपका A22, फिर A22 आ जाएंगे 1, फिर ये आई आ गई 2, जे भी 2, इसमें आई जे दोनों 2, तो फिर 2 इसे पुट करो, चलो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्या 4 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2 4 का होल स्क्वायर, क्या होगा 4 × 16/2 2 2 8, क्या आ गया यहाँ पे क्या आ गया बताओ, सिंपल आ गई 8 आ गया हमको, आगे कि नहीं बताओ, सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब आ गए एलिमेंट, आप इसको फॉर्म में कर लो। चलो इसको A1 में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, A12 का क्या निकाले हम, A12 का 9/2 आ गया, A21 में क्या आया 9/2 आया, देखिए सर A22 का क्या आया 8 आया, ये मैट्रिक्स हमको आंसर मिल गई, ये हमको मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। कितना ईजी है, देख लो ना आप लोग कितना ईजी है। इस तरीके से सेम वही दो और दिया हुआ है, सेम कंसेप्ट सेम थिंग्स यू हैव टू अप्लाई एंड यू आर गोइंग टू गेट आंसर एट द लास्ट पॉइंट, ओके। तो करो आप लोग, कुछ नहीं, मैं बता चुका हूँ एक का जैसे करना है, जैसे मैं इसमें किया हूँ ऐसे ही आई जे का, वही आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम करो, सिंपल आ जाएगा फिर, ठीक है। तो मैं ये 2 क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं छोड़ दे रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना, मैं इसलिए आप लोगों के लिए बोला हूँ ऑलरेडी, आई टोल्ड यू आई वुड रिप्लाई ऑल दोस थिंग्स whatever the comment would be getting from your side, okay. So please try to comment on our comment section, so I'm going to get feedback from your side, and also I will try to improve from my side, okay. So that's I'm always try to tell you, please share with your friends, so also they
they can benefited by this lecture. That's why I will try to tell you. Okay. फिर चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, बताइए आप लोग कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इससे मेरी मोटिवेशन भी आएगी, तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा इस तरह की लेक्चर पूरा कंप्लीट करूँगा जो मैथमेटिक्स है। तो यही चीज़ है, फिर आइए आप लोग दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए फिर मैं चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ये मैं दो जो इसकी पार्ट है 2-3 पार्ट, उसको मैं छोड़ दूँ। सेम कंसेप्ट सेम थिंग, ओनली यू हैव टू डू some calculation. Okay, at the end you are going to get result by doing same things. Okay, चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो फिर ये अगला क्वेश्चन जो है 4 होगी। आप कंस्ट्रक्ट 3:4 मैट्रिक्स होल एलिमेंट है। इसमें क्या है 3:4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। फिर मैं एक और ले लेता हूँ 5 की, ठीक है। मैं 5 का एक और ले लेता हूँ, आप लोगों में 5 ले लेता हूँ एक फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूँ। फिर वही चीज़ है 3, लेकिन इसमें 3:4 के फॉर्म में दिया, ठीक है। 3:4 कंस्ट्रक्ट करनी है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, NCERT का एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। चलिए फिर इसको मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये फॉर्म करना है। Aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे, ठीक है। -1/2 माइनस 3i प्लस जे, ठीक है। तो फिर मैं ये इस चीज़ को लेता हूँ। क्या करनी है बताओ, कुछ नहीं करनी है। Aij 1/2 माइनस 3i प्लस जे, सिंपल है। ये दिया हुआ है तो कुछ नहीं, ये आपकी मोड दिया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल है, मोड दिया हुआ है, ये मोड, हाँ मोड दिया हुआ है। तो मोड में जानते हो आप लोग क्या, मोड का क्या होती है। अगर नेगेटिव है तो वो भी मोड से बाहर निकलेगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये सिंपल आप लोग मोड का ही आप लोग ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है उसमें। अगर मोड में अगर सिंपल नेगेटिव भी अगर वैल्यू है, अगर बाहर करोगे मोड से तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये एक मोड का अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा ये डिस्कशन नहीं करूँगा, इतना जो यहाँ पे जरूरत है मैं आपको बता दें, ठीक है। चलिए फिर इसका सिंपल आपको 3:4 मैट्रिक्स मीन्स रो 3 ऐसे होगी। A1 का निकाल लो। A1 क्या होगा 1/2 माइनस 3 आई की जगह 1 दो, आई की जगह 1 आई जे, तो -3 प्लस 1 क्या होगा 1/2 -2 -3 प्लस -2 और मॉड है तो 2 आएगा। 1/2 × 2 1 आ जाएगा 1। तो A12 का लो, A12 का क्या आ जाएगी, ऐसे ही है। मैं फिर वो आई की जगह -3 1 दो, आई की जगह जे की जगह 2 आ जाएगी 2। फिर वही चीज़ -1/2 -3 प्लस 2 कितना होगी -1। फिर मोड आ जाएगी -1/2। देख लो ना कितना ईजी है, कुछ नहीं ये करना है इसमें। फिर A13 का लो 1/2, फिर आई की जगह 1, आई की जगह फिर 1, आई की जगह फिर 1, जे की जगह 3 आ जाएगी -3 प्लस 3 1/2 0, सिंपल है 0 आ जाएगी, ठीक है। A14 की जगह, क्योंकि हमको क्या है 3:4 मतलब 3:4 3 कॉलम 3 रो 4 कॉलम। A14 तक जाऊँगा मैं, ठीक है। 1/2 -3, फिर एक जगह -3 प्लस 4, यहाँ पे 1/2 -3 प्लस 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं 1/2, ठीक है। ऐसे ही हम एक एक करके करते जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो जैसे आप लोगों को इतना मैट्रिक्स करना है। फिर A14 A21 A22 A23 A24 ऐसे करके बस जस्ट पुट करना Ij का वैल्यू, हमको नंबर निकलते जाएगी। लास्ट में हमको जो आएगी यहाँ पे हम एक एक करके ये मैट्रिक्स का यहाँ पे फॉर्म में बैठ जितना आएगी इस फॉर्म में बैठा देंगे। जैसे A11 क्या आई, A12 क्या आई, A13 क्या आई, A14 क्या आई, A21 क्या आई, A22 क्या आई, A23 क्या आई, A24 क्या आई, A31 क्या आई, A32 क्या आई, A33 क्या आई, A34 क्या आई, ठीक है। ये 3:4 मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो ये जस्ट पुट करते जो आप जैसे फॉर्मूला में जस्ट आपकी एक एक एलिमेंट आपकी आते जाएगी, ठीक है। कोई गलत है बताइए आप लोग, कोई कुछ है इसमें तो कुछ नहीं करना जी, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है। आप लोग कोशिश करो इस तरीके से, बस कैलकुलेशन करो, सिंपल है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। एक फिर भी ये अपने को करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन आती है 1 नंबर में आती है, कभी कभी कोई आप 2 नंबर 1 नंबर में जो जैसे मैट्रिक्स में इसी के आगे कंसेप्ट पे आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। तो
तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इजी है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। एक बार एटलीस्ट वन टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस, एटलीस्ट वन टाइम्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो इन ऑर्डर टू गेट योर फास्ट कैलकुलेशन सिंपली, जितना आप क्वेश्चन करोगे ना उतना आपकी फास्ट कैलकुलेशन होती जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इजीली न्यूमेरिकल कर सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और फास्ट भी कर सकते हो जल्दी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो मैं है, अब मैं 6 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लूँगा मैं आप लोगों के सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फ्लोइंग, सिंपल है जी, फिर वही चीज़ है। देखो मैं क्या बताया था आप लोगों को, जब इक्वल कब होगा दो डिटर्मिनेंट, जब उसका ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे देखो ऑर्डर सेम दिया हुआ है, सिंपल है। एक ही क्वेश्चन मैं करूँगा इसमें भी, एक ही क्वेश्चन आप लोगों को बस दिखाने के लिए किस तरह से इक्वेट करते हैं, और इसके अलावा आप लोग खुद करना, ठीक है। कुछ नहीं है, बस मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, एक क्वेश्चन शुरू करके आप लोग दूसरा, क्योंकि सेम दिया हुआ है तो मैं बार बार क्या करूँ, आप लोग बस आप लोगों में छोड़ देता हूँ इस चीज़ को। जब हार्ड आएगी तो मैं करता ही हूँ एक ही क्वेश्चन, जैसे डिटर्मिनेंट में देखिए आप एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए डील किया, जितना अच्छी इस तरह से चार मेथड पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया मैं, वही चीज़ है। तो ये क्वेश्चन 6 है, इसका इक्वेशन बस वही है 6 नहीं। अब चलो मैं 6 का तीसरा पार्ट लेता हूँ, 6 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 लेता हूँ, ठीक है। 6 का पार्ट नंबर 3 लेता हूँ। चलो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सबसे पहले लिखता हूँ, ये आपकी एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ठीक है। ये सिंपल ये दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा टेढ़ी हो गई, ठीक है। देखना आप लोग, इसका 957, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देखो सिंपल है, इक्वेशन निकालना है तो सिंपल, इसलिए मैं ये ले लिया ना कि आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा मैं इसमें करूँगा, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। चलो एक्स प्लस वाई जेड को सिंपल रखो, एक्स प्लस वाई जेड बराबर 9, सिंपल इक्वेट करते जाओ, एक्स प्लस जेड इजकल टू 5, वाई प्लस जेड इजकल टू 7, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो ठीक है। अब y निकालना है तो x प्लस जेड दिया हुआ है, तो इसमें हम डायरेक्टली पुट नहीं कर देंगे, इसमें x प्लस जेड का क्या वैल्यू दिया, 5 प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 5 आप मीन्स 4, 9 माइनस 5 y बराबर 4, ठीक है। फिर y प्लस जेड को 7 इसमें डाल देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या देंगे 9 माइनस 7, क्या आ जाएगी, y प्लस जेड को हम इसमें वैल्यू पुट कर दिए, सिंपल क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 2, ठीक है। x आ गया, y आ गया, फिर x y आ गई तो हमको z नहीं निकल जाएगी, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना है हमको, x कितना है, x कितना 2 प्लस, इसमें डायरेक्टली पुट करता हूँ मैं 4 प्लस जेड, क्या हो जाएगी 9, तो 6 प्लस जेड इजकल टू 9, जेड इजकल टू 9 माइनस 6, जेड इजकल टू 3, सिंपल है। आएगी नहीं, तो कुछ करना है नहीं, कुछ करना है, सिंपल है इसका। बस एक ये जो एक्सरसाइज है ना, एक आपकी बेसिक को चेक करता है कि आप एटलीस्ट टर्म उसका जो मैट्रिक्स के टर्म को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, यही एक चेक करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग 2 क्वेश्चन कर लेना, कुछ भी बस इक्वेट करना है, कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं इसको लीव करता हूँ। जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेक अदर क्वेश्चन, ओके गाइस। If you have any problem, guys, please try to comment in comment section. So in this way, I will get some feedback from your side, and also I will try to improve from my side also. So this is the first time I am teaching on Blackboard. Otherwise, I had the practice of teaching on pen copy. That's why I'm always try to ask about this feedback. This is the main things. So that's why if I would get feedback from your side, then I would get chance to improve myself. Okay. Question number 7, वही 7 क्वेश्चन नंबर वही सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही इक्वेट करना है, आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। कुछ इसमें नहीं है, जैसे देखो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, है 2a प्लस सी दिया हुआ है, 2a प्लस सी दिया हुआ है, 2a माइनस बी दिया हुआ है, 3c प्लस डी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किससे इक्वेट करना है, -1 5 0 -1 5 और 13, ठीक है। -0 5 -1 ओके गाइस। अब सिंपल है, इक्वेट करो, कुछ नहीं करना है इसमें। आप इक्वेट मैं लिख रहा हूँ बस, ऑर्डर 2 है, ये भी ऑर्डर 2 है, तो हमको ऑर्डर इक्वेट के लिए कब बोला था मैं, जब ऑर्डर सेम हो तभी इक्वेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग याद रखना।
कि ये टू ऑर्डर सेम ऑर्डर का है, ए माइनस बी इजकल टू -1, 2a प्लस सी इजकल टू 5, 2a माइनस बी इजकल टू 0, 3c प्लस डी इजकल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन 1 2 3 4 सिंपल है। बस इसका देखो आप सिंपल दिख रही है, ये दोनों से आप ये दोनों कैलकुलेशन कर लो, ये दोनों से ये दोनों कैलकुलेशन कर लो, सिंपल है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बस इक्वेशन का आपको लिखना था, बस आप जानते हो क्या कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल इक्वेशन से आप लोग ABCD का वैल्यू आप लोग इजीली फाइंड कर लो। ठीक है, ABCD का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ, ये आपकी AMN स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल है। आप बताओ 8 में क्या हो गया, ये 8 में क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी बताओ। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जैसे कुछ फॉर्म में दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कब बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कब बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है हमको AIJ M/n, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं। बताओ आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो, तो इसको क्या बोलेंगे 2:2, इसको भी हम लोग M/n, मतलब कब बोलेंगे, जब M=n हो जाए, तभी हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी क्या हो जाएगी आंसर बताओ आप लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, सिंपल है, जब दोनों सेम हो, मीन्स रो भी सेम हो, कॉलम भी सेम हो, तभी इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम नहीं बोल सकते। तो सिंपल सी कंडीशन 8 में क्या हो जाएगी, 8 का ये क्वेश्चन था, 8 में क्या हो जाएगी, इसका आंसर C हो जाएगी, M=n हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको 9th में विच ऑफ द फॉलोइंग XY मेक द पेयर ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल, मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, चलो इसमें देख लेता हूँ मैं, मैट्रिक्स इक्वल कब होगी। ठीक है, इसका फिर मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, चलो इसको इक्वेट कर लो, कोई कुछ नहीं है। इसको आप लोग एक काम करो, चलो मैं इसको कर देता हूँ, इक्वेट कब होगा, चलो इसको मैं कर लेता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका जो दिया हुआ है 9th जो दिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, आपकी 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको 0 y - 2 8 4 इक्वेट करना है। उसको मैं विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू गिवन वैल्यू x में मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ठीक है, तो चलिए फिर इसको मैं इक्वेट करता हूँ, क्या होगा 3x, क्योंकि ऑर्डर भी 2 है, ऑर्डर क्या है 2:2, ये भी 2:2, ऑर्डर भी सेम दिया हुआ है, तो क्या होगा 3x + 7 = 0, y - 2 = 5, y + 1 = 8, 2 - 3x = 4। ठीक है, चलिए आप फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई, इक्वेशन 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ, x = क्या हो जाएगी, x -7/3, फिर यहाँ से क्या आ जाएगी -3x 4 -2 ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगी -3x = 2, x = -2/3। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई x की। फिर चलिए y की ले लेता हूँ मैं, फिर चलिए 1 मिनट y को मैं ले लेता हूँ, क्या आ जाएगी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 7, इससे क्या हो जाएगी 2 इधर जाएगी, फिर y = 7। ठीक है, ये y = 7 दोनों इसमें आ गए, लेकिन इसमें देखो इसमें सेम आ रही है y की वैल्यू दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, लेकिन देखो आप x में देखो, ये पॉसिबल है क्या, दो वैल्यू x की दो पॉसिबल एट ए टाइम पॉसिबल है, नहीं हो सकती कभी भी। अगर एट ए टाइम आपको कोई भी x या y z या कुछ भी, अगर दोनों एक ही समय में दोनों ये दो वैल्यू डिफरेंट पॉसिबल है, तब भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गई, x की दो वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, x = -7/3 आ गई, -2:3 आ गई, तो ये हमको पॉसिबल नहीं है। इसका हम लोग क्या करते हैं, नोट इसमें आंसर जो होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सिंपल क्या होगा, नॉट
possible to find. Okay, not possible to find this. यही है, not possible to find. ठीक है, तो चलिए फिर मैं अगला जो क्वेश्चन है वो लेता हूँ आप लोगों के लिए. समझे ना कितना इजी है, कुछ नहीं है. फिर भी मैं इससे पता कर लिया कि इसको हम कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हम लोग दो एक्स की वैल्यू दो वैल्यू पा चुके हैं, वो भी डिफरेंट. कैसे इज इट नॉट पॉसिबल टू गेट एक्स वैल्यू एट द सेम टू डिफरेंट वैल्यू एट द सेम टाइम. दैट्स व्हाई यू आर अनेबल टू solve this question. Okay, so not possible to find. Simple answer होगी. ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है. जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेक अदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3 3 2 विथ एंटी 0. देखो आप लोग, ये 3 पर सबसे पहले कितना एलिमेंट होगा बताओ. सबसे पहले इसमें कितना एलिमेंट हुआ. 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एलिमेंट क्या होगा. 9 3 वही एलिमेंट होती है. ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो, जो आपकी आएगी वही एलिमेंट होगी. तो ये 9 एलिमेंट आ गए. ठीक है, ये क्या आ गई. 9 एलिमेंट हमको मिल गए. ये हमको 9 एलिमेंट मिल गए. ठीक है, तो आप इसका 0 और 1 से दोनों से एंट्री से उसको भरना है. 0 और 1 दोनों से भरना है. देखो 0 1 तो कितना आ गए 2, 0 अलग 1 अलग, तो कितना आ गए 2. अगर उसको हमको क्या करना है, द नंबर ऑफ पॉसिबल. तो नंबर ऑफ पॉसिबल कैसे निकालते हैं हम लोग. इसमें 2 भरना है, इसका इतना एलिमेंट दिया हुआ है, तो कितने तरीके से पॉसिबल हो सकती है. तो सिंपली इसको 2:9 क्या होगी. सिंपली 2 पर 9 का पावर क्या होगी, कितना आ जाएगी आपके 2 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 4 16 32 32 64 64. यहाँ पे 512 आ जाएंगे. ठीक है, आप लोगों को सिंपल 512 आंसर मिल जाएगा. 2 to the power 9 का जो वैल्यू आएगी आपकी 512 आ जाएगी. कैलकुलेट करना आप लोग. अगर प्रॉब्लम लग रही है तो देखो 2:2 2:2 2:2. ये 4 2 4 4 8 16 60. ठीक है, ये 4 चला गया. फिर चलो 2 2 16 32 64. ये 2 6 चला गया. ठीक है, 6 चला गया 6. अब इसके 2 128 7 2 उसका इतना, फिर 2 कितना 4 8 चौक 32 512 आ जाएगा. ठीक है, 512 आ जाएगी. समझे क्वेश्चन कितनी ईजी है. उसमें 0 1 से आपको पुट करना था. कितना 0 अलग हो गया, 1 1 1 होगा. 2 9 एलिमेंट दिया हुआ है, तो कितना हम इसको भर सकते हैं. तो लिखते हैं कितना पॉसिबल हो सकता है. 2 द पावर सिंपल जितना जो निकाल जितना दिया हुआ उस पर वही चीज़ वही सेम कंसेप्ट अप्लाई हुआ है. क्या होगा 2 to power 9. सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं 2 to power 9 2 to power 9 हम लोग बोलते थे 512. ठीक है, तो बताओ आप लोग. देखो ये एक्सरसाइज, ये आपकी जो एक्सरसाइज थी आपको बेसिक जो टर्म है उसको आपको चेक कर रही थी कि एटलीस्ट आप समझे कि नहीं क्या रो होती है, क्या कॉलम होती है, क्या आई जे की परफॉर्मेंस है, किस तरह से ऑर्डर का मैट्रिक्स हम इक्वेट करते हैं. तो यही सब इसमें है. तो इसमें कोई ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग बताऊँ कि एक एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा आप लोगों के लिए. तो ये एक्सरसाइज 3.1 थी. अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और भी मैं अगला ऐसे ही मैं आप क्वेश्चन में स्टार्ट कर चुका, जब तक खत्म ना हो ऐसे में चलते रहेगी सीरीज. तो प्लीज़ आप लोग बताना दोस्त कि कैसा लग रहा है आप लोगों को. उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगी कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ. तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो और मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले. ठीक है, तो फैलाइए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो. ठीक है, ओके गाइस, we will see in another video, and also I would solve exercise 3.2 in of NCERT books. So be ready, be regular. I will try to upload per day one videos, at least 1 to 2 video, at least one video. But I would get sometimes I would upload 2 videos, but this times at least one video I would upload per day. So be regular with us, and just try to grab all those concepts what I am trying to deliver in front of you. Okay, we'll see. Thank you. Bye bye.